بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ انتظار کرتے کرتے تھک گئے کہ آپ کی دعائیں قبول ہی نہیں ہو پا رہی؟ کیا آپ تھک چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو آپ نے دعائیں مانگی وہ آپ کی پوری نہیں ہو رہی؟ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ خدا جس چیز کا وعدہ کرتا ہے، جس چیز کی آپ دعا مانگتے ہیں وہ ضرور دیتا ہے۔ کیا آپ تھک چکے ہیں؟ کیا آپ پریشانیوں سے تنگ آ چکے ہیں، پریشانیاں اپنی دور کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے سارے دکھ غم دور کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ رزق و برکت عطا فرمائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو روٹی کھائیں وہ حلال کی ہو؟ آپ جو کھانا کھائیں، آپ جو پانی پئیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آپ کے لیے تو بہت خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ نے پلان کر رکھی ہیں۔ آپ کے لیے تو بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پلان کر رکھی ہیں، اس لیے انتظار سے مت تھکیں۔ اس انتظار کے بعد اللہ کے لامحدود خزانوں میں سے آپ کے بڑے بڑے انعامات دیے جانے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے محدود خزانوں میں سے آپ کے بڑے بڑے انعامات دیے جانے ہیں۔ بس آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور اللہ کے راستے پر جمے رہیں۔ آپ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری سے نوازے جائیں گے۔ وہ قادر ہے، تمہیں لگتا ہے یہ تمہیں نہیں مل سکتا؟ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں نہیں مل سکتا؟ تمہیں لگتا ہے یہ پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ وجود ہمیشہ کسی خوشی کا منتظر رہے گا، مگر یہ تو تمہیں لگتا ہے نا، تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ مگر یہ تو تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہارے رب کے لیے کچھ بھی ممکن نہیں۔ اس لیے مایوسی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دیں، اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ تمہارے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا، ہر غم کو تم سے دور کر دے گا، تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ بس خدا پر یقین رکھیں۔ بس ایک چیز خدا مانگتا ہے کہ خدا پر یقین رکھیں اور اسی سے مانگیں۔ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کامنٹ کر دیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ ناس کی فضیلت اور ثواب اور اس کا وظیفہ۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، ختم نبوت، مجھے سورہ ہود اور سورۃ یوسف کی آیتیں پڑھائیے۔ یا رسول اللہ، مجھے سورۃ ہود اور سورۃ یوسف کی آیاتیں پڑھائیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ بن عمر، تم قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ اللہ عز و جل کو محبوب اور اس کے نزدیک زیادہ بلیغ کوئی صورت ہرگز نہیں پڑھ سکو گے۔ تم قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ اللہ عز و جل کو محبوب اور اس کے نزدیک زیادہ بلیغ کوئی صورت ہرگز نہیں پڑھ سکو گے۔ اگر تم سے ہو سکے تو نماز میں یہ صورت پڑھنا نہ چھوڑو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سردار، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ گزشتہ رات کچھ ایسی آیاتیں نازل ہوئیں جن کی مثال کوئی آیت نہیں؟ اور وہ صورت کون سی ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہر قسم کی بیماری سے نجات کا عمل۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اپنے منہ مبارک سے بتا دی وہ حق سچ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیں تمام عمل کر کے دکھایا کہ ان کے جانے کے بعد ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک کتاب دی جس کتاب میں ہر مشکل، ہر بیماری، ہر مشکل سے مشکل کام کا حل ہے۔ بس پڑھنے والے کو اس پر غور کرنا چاہیے اور اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ تو آج ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہر قسم کی بیماری سے نجات کا بہترین نسخہ شیئر کریں گے۔ اس نسخے کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے جسم میں موجود ہر قسم کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر سورۃ فاتحہ 70 بار، جو شخص بارش کا پانی لے کر اس پر سورۃ فاتحہ 70 بار، سورۃ اخلاص 70 بار اور سورۃ الفلق 70 بار اور سورۃ الناس 70 بار پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
कसम खाकर इरशाद फरमाया कि जिब्राइल मेरे पास तशरीफ लाए और मुझे खबर दी कि जो शख्स इस पानी को 7 दिन तक मतवातिर पिएगा तो अल्लाह ताला उस शख्स की हर बीमारी को दूर फरमा दे और उसे सेहत और आफियत अता करेंगे और उस शख्स की गोशत और उसकी हड्डियों से तमाम बीमारियों को निकाल देंगे। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ लिया करें, ये तुझे हर चीज़ के लिए काफ़ी हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। ये तीनों सूरतें हर शर से हिफाजत के लिए काफ़ी हैं। इनको पढ़ने वाला अगर कोई ये वजीफ़ा ना पढ़ सके तो इन सूरतों को विर्द ही उसे तमाम वज़ाइफ से बेनियाज कर देगा और वो हर शर से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम दिन में कम से कम 10 मरतबा पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला शैतानों के शर से बचने को एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है। सुभान अल्लाह। इन दोनों सूरतों सूरतुल फल्क और सूरत नास को मुअज़्ज़ितीन कहकर पुकारा करिए क्योंकि इन दोनों सूरतों में अल्लाह की पनाह मांगी गई है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरत फल्क और सूरत नास की तिलावत करेगा गोया उसने अल्लाह की तरफ से अंबिया पर नाजिल होने वाली तमाम किताबों की तिलावत की है। सुभान अल्लाह। इससे और बड़ी क्या बात हो सकती है कि अंबिया पर नाजिल होने वाली किताबों की तिलावत की है। हमारी किताबें कितनी हैं? 4 किताबें हम पर नाजिल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील और आखिर में हमारी प्यारी किताब कुरान मजीद। कि जो सूरत फल्क और सूरत नास की तिलावत करेगा गोया उसने अल्लाह की तरफ से अंबिया पर नाजिल होने वाली तमाम किताबों की तिलावत की। सुभान अल्लाह। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर ऐसी आयतें नाजिल हुई कि और कोई आयत उनकी मिसाल नहीं, जो 2 सूरतों सूरत फल्क और सूरत नास की आयत हैं कि आप वसल्लम ने इस बात की तस्दीक की है कि मुझ पर जो आयतें नाजिल हुई हैं, जो अब आयतें नाजिल हुई हैं, उनकी कोई मिसाल नहीं। और वो आयतें कौन सी हैं? सूरत फल्क की आयत और सूरतुन नास की आयत। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया, खुदावंद आलिम के महबूब तरीन सूरतों में, अल्लाह ताला के करीब तरीन सूरतों में से अल्लाह ताला को जो सूरतें बहुत महबूब हैं, जिनको वो सुनना, उनकी तिलावत करना, उन अल्लाह ताला के लिए जो पढ़ता है अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। और वो सूरत कौन सी है? सूरत फल्क और सूरतुन नास। क्या आप हर बीमारी का इलाज चाहते हैं? तो बस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते और तकलीफ होती तो अपने ऊपर मुअज़्ज़ितीन सूरत फल्क और नास पढ़कर दम फरमाते। जब हमारे महबूब बीमार होते थे, हमारे आकाए दो जहां बीमार होते थे, तो वो मुअज़्ज़ितीन यानी कि सूरतुल फल्क और सूरत नास पढ़कर अपने ऊपर दम करते। फ़ायदा इसका ये, ख्वाह किसी किस्म की बीमारी हो या डर खौफ हो, तो इन 2 सूरतों को अपने ऊपर या जिसे तकलीफ हो उस पर दम कर दें, मज़ीद अपने हाथ पर दम करके पूरे जिस्म पर मल लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सूरत फल्क और सूरत नास, ये सूरत आसेब, साया, जिन्नात को दूर करने के लिए बहुत ही अक्सीर है। जो शख्स इसे रात को सोते वक्त पढ़कर अपने ऊपर दम करे तो इंशाअल्लाह हर तरह का डर खौफ और मुसीबत से महफूज रहेगा। और अगर कोई शख्स इसको अपनी किसी परेशानी या गम के वक्त पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसके गम और बीमारी दूर हो जाएगी। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है, मैं तुझे सजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने गुजरी रात मुझे सलामत रखा और आज का दिन भी बख्शा, इन और बाकी सब नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी और कुरान पाक नाजिल फरमाया। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्शा ताकि तुझे नाराज़ ना कर सकूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। ये दोनों सूरतें उस वक्त नाजिल हुई जब कुछ यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की कोशिश की। कई अहादीस से साबित है कि इन सूरतों की तिलावत और इनसे दम करना जादू के असरात दूर करने के लिए बेहतरीन अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले इन सूरतों की तिलावत करके अपने हाथों पर दम करते, फिर इन हाथों को पूरे जिस्म पर फेर लेते। और वो सूरतें क्या हैं?
और वो सूरतें ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत फल्क, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फल्क मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रिल गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासातिन फ़िल उक़द व मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद। सुभान अल्लाह। सूरतुन नास की तिला, कुल आऊज़ु बिरब्बिल नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। आप देख रहे हैं सुभान अल्लाह कि आखिर में मिनल जिन्नति वन नास कि आप वसल्लम ने बता दिया है कि ये सूरतें हमें जादू टोने हर किस्म की बीमारियों से दूर करेंगी। अगर जादू और नजर बद की काट के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको नज़र बहुत लगती है, आप पर जादू बहुत होता है, उसके लिए सूरतुल फल्क और सूरतुल नास 41 मरतबा या सूरतुल बकरे की आखिरी रुकू 7 मरतबा सूरतुल नास 41 मरतबा या फिर सूरत बकरा की आखिरी रुकू 7 मरतबा, इंशाल्लाह हर तरह का जादू और नजर बद खत्म हो जाएगा। 21 दिन तक ये अमल करते रहें, 21 दिन तक आप पढ़ते रहें। आप कह दीजिए मैं लोगों की परवरदिगार में पनाह आता हूँ, लोगों के मालिक और लोगों के माबूद की पनाह में वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है, ख्वाह वो जिन में से हो या इंसान में से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, मैं अपने बंदे के साथ वही मामला करता हूँ जिसका वो मेरे साथ गुमान करता है। अगर हम अपने खुदा से सोचेंगे कि हम अपने खुदा से बहुत अच्छा मेल रखेंगे, उसकी हर बात माने, हम पर जो मुश्किलें आएंगी उसके सब्र और तहम्मुल से करेंगे, तो अल्लाह ताला ने बता दिया है कि मैं उसके साथ उसी तरह बर्ताव करूंगा जिस तरह वो चाहता है, जिस तरह वो सोचता है। वो सोचता है कि उसकी सारी दुआएं कबूल हो जाए तो मैं करने पर कादिर हूँ। वो सोचता है कि उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाए तो मैं करने पर कादिर हूँ। और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अल्लाह की कसम, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उससे ज़्यादा खुश होता है जितना तुम में से कोई अपनी गुमशुदा सवारी को जंगल में पा लेने से खुश होता है। अल्लाह ताला ने बता दिया है कि मैं अपने बंदे से उतना खुश होता हूँ जैसे कि तुम्हारी साइकिल जंगल में खो जाए और वो दोबारा मिल जाए तो तुम्हें कितनी खुशी होती है। जो एक बलशत में करीब होता है, मैं एक हाथ उसके करीब होता हूँ और एक हाथ मेरे करीब होता है। वो मैं 2 हाथ उसके करीब होता हूँ तो वो 2 हाथ मेरी तरफ करीब होता है। और जो मेरे तरफ चल कर आता है मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर आती है। जो मेरे तरफ चल कर आता है तो मेरी नेमतें, मेरे सारे मतलब नेमतें और रहमतें दोनों उसकी तरफ होती हैं। सुभान अल्लाह।